پینے کے پانی کی شدید قلت، خواتین نے خالی گھڑوں کے ساتھ سڑک پر کیا انوکھا احتجاج۔ سعودی عرب کے شہر جیزان میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جانے والے حیدرآباد کے شیخ نعیم الدین کے افراد خانہ ان کی تجہیز و تکفین کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود مرحوم کے جسد خاکی کو نہ ہی ہندوستان بھیجا گیا ہے اور نہ ہی سعودی عرب میں ان کی تدفین کے انتظامات ہی کیے گئے ہیں۔ فی الحال شیخ نعیم الدین کی ڈیڈ باڈی اسپتال کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ خاص رپورٹ۔ حیدرآباد کے علاقے یوسف گڑا سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ ٹیکنیشین شیخ نعیم الدین کا 18 جون کو سعودی عرب کے شہر جیزان کی ایک مسجد میں انتقال ہو گیا تھا۔ جیزان میں انتقال ہوا، صبح فجر میں انہیں جو ہے نماز کے لیے گیا۔ نماز کے لیے جانے کے بعد وہاں پہ جو انتقال ہوا تو کسی کو نہیں معلوم، جو مسجد والوں کو اس میں تھا۔ کمپنی کی گاڑی نکل گئی، جب وہ 3 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی چلی گئی، پھر تیسری گئی، دوسری گئی، اس میں انہیں جو ہے وہیں پہ ڈیڈ باڈی اس کی وہیں رات صبح تک رہی، سمجھو صبح دوپہر میں۔ اس کے بعد مسجد کے پیش امام صاحب فون کر کے بلا کے جو ہے پولیس والوں کو بلا کے دے دیے اور ڈیڈ باڈی لے کے چلے گئے دواخانے بول کے بولے۔ پھر کمپنی والے جو ہے وہاں پہ گئے، پولیس اسٹیشن گئے تو نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں ہے، ہمارے سے کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، یہاں سے چل جاؤ بول کے ہکال دیے۔ شیخ نعیم الدین کے انتقال کی خبر ملنے کے بعد حیدرآباد میں ان کے افراد خانہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ان کی لاش کو حیدرآباد منتقل کروایا جائے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ سعودی عرب سے ڈیڈ باڈی کو ہندوستان منتقل کرنا بے حد مشکل کام۔ تب مرحوم کی زوجہ سمینہ بیگم نے ایک خط لکھ کر سعودی حکام سے گزارش کی کہ ان کے شوہر کی وہیں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے قواعد کے مطابق ایک ہندوستانی شہری حسن عبداللہ کو پاور آف اٹارنی بھی دیا، لیکن اس سب کے باوجود انہیں معلوم ہوا کہ شیخ نعیم کی ڈیڈ باڈی اسپتال کے مردہ خانے میں ہی پڑی ہے۔ پر 1 مہینہ 4 دن ہوا ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی تک ڈیڈ باڈی بتائی بھی نہیں، بھی دکھائی بھی نہیں، کوشش کر رہے ہیں مگر کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں، کب کریں گے بول رہے نہیں ابھی تک۔ ہم بہت پریشان ہیں، بہت برا حال ہے ہمیں، رو کے ہمارا پرورش کے لیے اتنی دور چلے گئے بچوں کے خاطر، آنے میں رہ گیا، اب آنے والے تھے، ایسا ہو گیا ان کے ساتھ۔ گورنمنٹ انڈیا کیسا بھی کر کے ہمارے کو جتنا بھی ہو سکے آپ جو ہے ہماری کوشش کر کے شیخ نعیم الدین مرحوم ہے اور اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی کے لیے وہاں پہ جو ہے تقسیم کر دو بول کے ہم گزارش ہے کہ ابھی تک کرتے ہی کرتے میں وہیں کرو بولے تو کرنے میں چاہے بھی لوگ۔ شیخ نعیم الدین کے افراد خانہ نے تلنگانہ کی ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ مرحوم شیخ نعیم کی ڈیڈ باڈی کا جلد از جلد پوسٹ مارٹم کرواتے ہوئے ان کی آخری رسومات کا انتظام کیا جائے۔ حیدرآباد سے انیس الرحمان کی رپورٹ۔ حیدرآباد وجےواڑہ شاہراہ کی توسیع کا مطالبہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ نلگنڈا ایم پی اتم کمار ریڈی اور بنگیر ایم پی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے دہلی میں روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری سے خاص ملاقات کی۔ اس دوران حیدرآباد وجےواڑہ شاہراہ کی تفصیلات سے نتن گڈکری کو واقف کروایا گیا۔ کومٹ ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ شاہراہ کی توسیع نہ ہونے سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، سڑک حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس پر مرکزی وزیر نے شاہراہ کی توسیع کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مانسون کی آمد کے بعد بارش خاطر خواہ نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ہاں موسمی بیماریوں میں ضرور اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈینگو، ملیریا، ٹائیفائڈ جیسے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے موسمی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ صاف و صفائی کا خاص خیال رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ پانی کو صاف کر کے پینے اور بازار کی غذاؤں کے استعمال نہ کرنے کا بھی ڈاکٹرز نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے۔ Last 1 week, dramatically the OP number is increasing.
Most of the patients are children are coming more, and middle-aged people are coming more with running nose and body pains and fever. But most of the time, this June, July, August, September months are mostly for a dengue or chikungunya, other viral diseases are more prone, and people should have very careful about mosquito bites, and personal protection measures more important. And whenever the dengue suspicion cases like temperature is more than 103, 102 for the last 3 days, and with the body pains and rashes in the body and sometimes vomiting emotion, these are the suspected symptoms. They have to get admitted nearby hospitals and tests to be done and treated accordingly. All the viral fevers are most of the time they're symptomatically and supportive treatment relieved. Till now no mortality has occurred, and through media I am also instructing all the public take care of their personal hygiene measures, and wherein the surroundings should be very neat, and the fly area should be covered, mosquito and all these fly areas should be covered and should be alerted properly. बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में वाक़ नीलूफर और गांधी अस्पताल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुलाजमीन एहतजाज पर हैं, बावजूद इसके आला ओहदेदार मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से नीलूफर अस्पताल में साफ सफाई के अलावा पेशेंट केयर और सिक्योरिटी गार्ड्स एहतजाज पर है। इसकी वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल हल न होने की सूरत में अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। लाइल्मी और मालूमात की कमी के सबब समाज के कई अफराद साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते जा रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने साइबर क्राइम से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने पर जोर दिया है। साइबर सेफ हैदराबाद बनाने के लिए महकमा पुलिस की कोशिश जारी है। अंजनी कुमार ने साइबर जराइम के शिकार अफराद से अपील की है कि वो पुलिस से रुजू होकर इस तरह के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस का ताउन करें। सिटी पुलिस की तरफ से हैदराबाद के विशेषज्ञ भवन में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद रहे। Safety and security now present atmosphere low, internet safety, cyber safety, online safety, digital safety ఇవన్నీ గురించి ఇది అటాచ్ అయింది. Prevention and detection of crime, and number 2 creation of awareness among all boys and girls of Hyderabad. ఈ type of awareness program మన additional CP crime DD तरफ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక స్కూల్లో కాలేజ్లో లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆడిటోరియంలో జరుగుతుంది. పర్పస్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అట్మాస్ఫియర్ సో దట్ మన పిల్లలకి దే షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లాయిటెడ్, దే షుడ్ నాట్ బి। तेलंगाना की एक मकामी अदालत ने जायदाद के लिए अपनी ही मां पर जुल्म सितम करने वाले बेटे और बहू को 2 साल कैद की सजा सुना दी है। हैदराबाद की हिल्स कॉलोनी नरेडपेट की रहने वाली 70 साल बेवा प्रेमा कुमारी के शौहर का इंतकाल हो गया था। उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी है। शौहर की मौत से पहले ही दोनों बेटों को जायदाद तकसीम कर दी गई थी, लेकिन बड़ा बेटा अमित कुमार अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी ही मां के नाम पर मौजूद मकान को हड़पने के लिए अपनी मां को सताया करता था। उसकी मां ने तंग आकर 2015 में नरेडमेट पुलिस स्टेशन में बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात के बाद अमित कुमार के खिलाफ मलकाजगिरी अदालत में चार्जशीट दाखिल की और इसी पर अदालत ने इस केस का फैसला सुनाते हुए अमित कुमार और उसकी बीवी शुभिता लावण्या को 2 साल कैद के साथ फीकस 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। తెలియకుండానే పట్ట ఆయన పేరు మీద వాళ్ళ భార్య పేరు మీద లావణ్య పేరు మీద చేసేసిండ్రు. చేసేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆయన వేధింపులు మొదలుపెట్టిండు. ఇది నా ఇల్లు, నువ్వు నా ఇంట్లో ఉంటున్నావు, నేను ఎన్నిసార్లు కరెంటు బిల్లు కూడా ఆయన పేరు మీద చేసుకున్నాడు. ఏంటి నువ్వు ఇట్లా చేసుకున్నావు, మరి కరెంటు బిల్లు కట్టమంటే అది నా ఇల్లు మన గట్టిగా అరిసేవాడు. కానీ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరికి రావద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ న్యాయం దేవుడు న్యాయం తీర్చిండు కాబట్టి ఈరోజు ఈ న్యాయం ప్రకారము మేము పోయిన 4 సంవత్సరాలకు దేవుడు అనుగ్రహించి నాకు న్యాయం తీర్చిండు కోర్టులో కేసులో మేము। जिला मेदक के शिवमपेट मंडल के शंकर तांडा में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। इस हादसे में कई झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। 3 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है।
इन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मकामी तहसीलदार भुवन प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। शिवमपेट MP हरि कृष्णा ने मुतासरीन को माली इमदाद दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला कामारेड्डी में खवातीन ने पीने के पानी सप्लाई करने की मांग करते हुए सड़कों पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। खवातीन ने खाली घड़ों के साथ रास्ता रोको एहतजाज किया। दोमकुंडा मंडल के BC कॉलोनी बीड़ी कार्मिका कॉलोनी की खवातीन ने पंचायत पर इल्जाम लगाया कि वो पीने का पानी फराहम करने में नाकाम रही है। हुक्काम भी इस मसले को हल करने के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहे। और कर्नाटक से इस वक्त बेहद अहम खबर। कर्नाटक में सियासी नाटक से मुताल्लिक खबर हम आपको दे रहे हैं। कर्नाटक असेंबली में कुमारस्वामी का खिताब, वज़ीर आला कुमारस्वामी का ये विदाई खिताब हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कुमारस्वामी ने कहा है कि मैं कर्नाटक की आवाम से माफी मांगता हूं। बेंगलुरु में शाम 6 बजे से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तशद्दुद के शुबे के पेश नजर दफा 144 का निफाज किया गया है। आइंदा 48 घंटों के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इस सब के बीच तमाम बार और शराब की दुकानें 25 जुलाई तक के लिए बंद रहेंगी। तो कर्नाटक से बेहद अहम खबर, जहां के पल पल सियासी हालात पर न्यूज़ 18 की नजर भी बनी हुई है। वहां वज़ीर आला कुमारस्वामी का खिताब हो रहा है और ये उनका अलविदाई खिताब भी हो सकता है, विदाई खिताब हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं कर्नाटक की आवाम से माफ़ी मांगता हूं। और इस सब के बीच तशद्दुद के शुबे के पेश नज़र बेंगलुरु में 6 बजे से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और आइंदा 48 घंटों के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। इस सब के बीच तमाम बार और शराब की दुकानें 25 जुलाई तक के लिए बंद रहेंगी। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ अल्लूर। रऊफ, काफी अहम खबर, लगता है कर्नाटक के सियासी नाटक पर अब पर्दा गिरने वाला है। अपडेट जी बिल्कुल भी गुज़िश्ता 18 दिनों से जारी कर्नाटक की सियासी उथल पथल, सियासी ड्रामा, सियासी हंगामा आराई पर अब शायद पर्दा गिर सकता है। कुछ ही देर में वजीर आला HD कुमारस्वामी अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 20 मिनट से जो है वजीर आला HD कुमारस्वामी के ऐवान में खिताब कर रहे हैं और हो सकता है कि ये उनका विदाई खिताब हो। और उन्होंने जो तफसीलात जिस अंदाज में वो बयान करते हुए आ रहे हैं कि रोज अव्वल से उनके साथ क्या क्या हुआ, ये तमाम तर जो है अभी यही कहा जा सकता है कि मजीद वक्त लेंगे वजीर आला HD कुमारस्वामी और मजीद जो भी बातें हैं वो खुलकर ऐवान के सामने असेंबली में रख रहे हैं। अब तो दूसरी जानिब जो है सख्त हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। खास तौर पर असेंबली के अतराफ जो है कड़े हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि वजीर आला HD कुमारस्वामी, जैसा कि हमने कहा था कि पिछले चंद दिनों से ये बात कही जा रही थी कि इस्तीफा आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, लेकिन शायद अब वो वक्त आ चुका है कि वजीर आला HD कुमारस्वामी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अपना खिताब वजीर आला HD कुमारस्वामी इस वक्त कर रहे हैं और काफी जज्बाती भी दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जिस अंदाज में जो बातें रखी हैं और खास तौर पर उन्होंने बीजेपी के जो इल्जामात थे, बीजेपी के जो मुश्किलात थे, उसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है कि उन्हें किस तरह रुकावटें पैदा की गई। इस 13 महीने की हुकूमत, 13 महीने में तक वो वजीर आला रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सियासत में आना नहीं चाहते थे। एक वक्त था क्योंकि वो फिल्मी दुनिया में थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो उनका कहना था कि मैं सियासत में आना नहीं चाहता था, मेरे वालिद की वजह से मैंने सियासत में कदम रखा और आज के जो हालात हैं उससे मुझे बहुत मायूसी हो रही है। ये तमाम बातें जो दिल में उनकी में छिपी हुई थी वो आप ऐवान के सामने रख रहे हैं और जज्बाती भी हैं। और हो सकता है कि कुछ ही देर में वजीर आला अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वजीर आला HD कुमारस्वामी को एतमाद का वोट हासिल करना है, लेकिन यहाँ पर जो है जो दरकार नंबर हैं वो कांग्रेस। तो बहरहाल कर्नाटक की सियासत पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम अपने तमाम नाज़रीन को दे रहे हैं। रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तमाम तर जानकारी के लिए आगे भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश असेंबली में हंगामा आरआई पर तेलुगुदेशम पार्टी के 2 अरकान ऐवान से मुअत्तल। हुकूमत का इक़दाम जमहूरियत के खिलाफ, तेलुगुदेशम का इल्जाम। आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर के लिए विजयवाड़ा का राजभवन बिल्कुल तैयार, कल सुबह 7:30 बजे हलफबरदारी। चाइना मोबाइल कंपनी के वक्त की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से खास मुलाकात। आंध्रा में दूसरे प्लांट के क़याम पर हुई बातचीत। और करनूल ईदगाह में बारान रहमत के लिए नमाज़े इस्तिस्क़ा का खास एहतमाम, बारिश के लिए की गई रक़्क़त-आमेज़ दुआएं। अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली से तेलुगुदेशम के 3 अरकान को ऐवान में गड़बड़ी और कार्रवाई में रख न डालने की वजह से मुकम्मल बजट सेशन तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ को नामजद ओहदों पर रिजर्वेशन बिल मामले पर गड़बड़ करने के इल्ज़ाम में अच्चन्नायडू, गोरंटला बुचैया चौधरी और N रामानायडू को डिप्टी स्पीकर ने बजट सेशन के अख्तिताम तक के लिए मुअत्तल कर दिया। वज़ीर फाइनेंस और उमूर मुक़न्नना B राजेंद्र रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने पर उनकी मुअत्तली की तजवीज़ पेश की। बादएज़ा डिप्टी स्पीकर के रघुपति ने 30 जुलाई तक तेलुगुदेशम के 3 अरकान को मुअत्तल करने का ऐलान किया और तेलुगुदेशम के मुअत्तल अरकान ने स्पीकर के करीब पहुंचकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और साथ ही से नाइंसाफी से ताबीर किया। సభా గౌరవం కోసము సభా మర్యాద కోసము అదే విధంగా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం అధ్యక్ష అండర్ ప్రొవిజో టు sub rule 2 of rule 340 I request that the following members may be suspended from the service of the house for the rest of the session adhyaksha. The members being number 2 Sri Achannaidu Kinjarapu, number 6 being Sri Buchaya Chaudhary Gorantla, number 16 being Sri Ramanaidu Nimala. For the motion please say aye. Those who are against please say no. Against have it, ayes have it. The motion is carried and the following members are suspended from the service of the house. Rest of the session. Sri Achannaidu Kinjarapu, Sri Buchaya Chaudhary Garu, Sri Ramanaidu Garu Nimala. Please. Please. और इस सब के बीच तेलुगुदेशम के डिप्टी फ्लोर लीडर अच्चन्नायडू ने असेंबली से उन्हें मुअत्तल करने की सख्त मजम्मत की। साथ ही उन्होंने हुकूमत के रवैये को गैर जमहूरी और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने वाला करार दिया और कहा कि असेंबली से मुअत्तली के बावजूद YSR कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत की नाइंसाफ़ी के खिलाफ उनका जद्दोजहद जारी रहेगा। तेलुगुदेशम लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि कल्पा की गिरोहवारी सियासत असेंबली में आ गई है, जो कि तेलुगुदेशम की जानिब से हर मसले पर सवाल उठाए जा रहे थे, इसीलिए पार्टी के अरकान को मुअत्तल किया गया। మా స్థానంలో ఉండి మేము ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తుంటే మీరు నన్ను సస్పెండ్ చేయడం చాలా అనాగరికతమని, చాలా అప్రజాస్వామికమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, నువ్వు శాసనసభలో నా వాయిస్ మూసినా సరే కాలికి గజ్జి కొట్టుకొని రాష్ట్రమంతా తిరిగి మీరు సంవత్సరంలో ఇచ్చిన హామీలు, మీరు సంవత్సరంలో ప్రజలకు మోసం చేసినటువంటి మోసాలు, ఒక బలహీన వర్గాల నాయకుడిగా నా ప్రయత్నాన్ని నేను చేస్తాను తప్ప నీకు భయపడనని, నీ సస్పెండ్లకి వెనకడుగు వేయనని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ దీనిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. శాసన సభాపతులకు కూడా ఒక సలహా ఇస్తున్నాను. మీరు ప్రభుత్వం మాటలు విని శాసన సభాపతులుగా చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోవద్దని నేను ఒక సలహా ఇస్తున్నాను. और इस सब के बीच आंध्र प्रदेश असेंबली में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू के दरमियान फिर से लफ्जी जंग देखी गई। नामजद ओहदों पर SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन फराहम करने की बिल की पेशकश के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान बहस तकरार देखने में आई।
అధ్యక్ష మీరు ఆ 75,000 రూపాయలు దేనికోసం ఇస్తామని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అప్పుడు చెప్పలేదు. ఇది ఇప్పుడు చెప్పలే కదా, మేము అదే అడుగుతున్నాం. ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీలకు సంబంధించి చారిత్రాత్మక బిల్సు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడతా ఉన్నాము అని ఎక్కడ ఈ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందో ఆ వర్గాలలో, ఎక్కడ ఆ వర్గాలలో మంచి పేరు ఈ ప్రభుత్వానికి వస్తుంది అని చెప్పి ఆక్రోశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈర్ష్యతో ఏ స్థాయికి దిగజారిపోతా ఉన్నాడో అన్నది నిన్నటి నుంచి చూస్తే కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అధ్యక్ష. దేశంలో గురించి నాకైతే తెలియదు, కానీ రాష్ట్రంలో అయితే ఎప్పుడు జరగని విధంగా అధ్యక్ష 50% రిజర్వేషన్లు నామినేటెడ్ పదవుల్లో ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనారిటీలకు ఇచ్చే చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా. आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने तिरुपति का दौरा किया। उन्होंने अपने अफराद खाना के साथ तिरुमला मंदिर के दर्शन किए। टीटीडी चेयरमैन वाईवी सुब्बारेड्डी ने नामजद गवर्नर का इस्तकबाल किया। वो कल विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर का हलफ लेंगे। और वहीं दोनों तेलुगु रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन की विजयवाड़ा में विदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। विजयवाड़ा के एक प्राइवेट होटल में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के अलावा उनकी अहलिया YS भारती, रियासती DGP गौतम सावंत, MLAs, MLCs और दीगर भी मौजूद रहे। इस दौरान वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए गवर्नर की जानिब से की गई उनकी खिदमत की सताइश की। साथ ही मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के लिए नए गवर्नर का इंतखाब किया है। 24 जुलाई को बिश्वभूषण चंदन आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर की हैसियत से हलफ लेंगे। आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर के इस्तकबाल के लिए विजयवाड़ा का राजभवन बिल्कुल तैयार है। एपी के नामजद गवर्नर बी भूषण हरिचंदन आज शाम विजयवाड़ा के राजभवन पहुंचे। राजभवन में कल तकरीब हलफबरदारी का इनेकाद किया जाना है। तकरीब हलफबरदारी में 500 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्की की जा रही है और बारिश से महफूज रहने के लिए खास पंडाल भी लगाए गए हैं। APSP और ISW ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली है। वाज़ेह रहे कि AP की तकसीम के बाद दोनों तेलुगु रियासतों के लिए मुत्तहदा गवर्नर थे। मरकजी हुकूमत ने BB हरिचंदन को AP का गवर्नर नामजद किया है। कल से वो अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। AP हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस गवर्नर को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। चाइना मोबाइल कंपनी शिवमी आंध्र प्रदेश में एक और प्लांट कायम करने की तैयारी में है। चाइना मोबाइल कंपनी के जिम्मेदारों ने आज ताड़ेपल्ली में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से इस सिलसिले में मुलाकात की। इस दौरान चाइना कंपनी की जानिब से प्लांट में तैयार होने वाली अशिया की तफसीलात पेश की गई। चाइना मोबाइल कंपनी के नए प्लांट में चाइना मोबाइल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक अशिया और इलेक्ट्रिकल व्हीकल तैयार करने की बात कही गई है। इससे पहले चाइना मोबाइल कंपनी के वफ्द ने रियासती वजीर गौतम रेड्डी से भी मुलाकात की थी। दौरे हाजिर में रोबोट, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इस शोबे में रिसर्च के मकसद से सेंटेलियन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नूल IIIT के साथ रस्मी मुआहदा किया। कर्नूल IIIT में मुनक़दा मुआहदे के तहत तलबा को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही रिसर्च के शोबे में उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी ताकि तलबा को मुस्तकबिल में इससे फ़ायदा पहुँच सके। इस मौके पर IIIT के डायरेक्टर सुमैया जोलू और सेंटेलियन प्राइवेट लिमिटेड के CEO भी मौजूद रहे। कर्नूल के कदीम ईदगाह में बारिश के लिए खुसूसी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। नमाज इस्तिस्का की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में मुसलमानों ने कदीम ईदगाह में शिरकत की। काजी सैयद सलीम बादशाह ने यहाँ इमामत की। बारिश के लिए रिक्कत आमेज़ दुआएं की गई। बारिश के लिए 24 और 25 जुलाई को भी इसी तरह से नमाज इस्तिस्का अदा करने का ऐलान किया गया है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने कर्नूल शहर के तमाम मुसलमानों को एकजा होकर अपनी तरफ मुतवज्जा होने की तौफीक अता फरमाई और बारान रहमत के लिए
गिड़गिड़ाते हुए बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह करनूल शहर के 5000 से ज़ायद हजरात ईदगाह में जमा हुए और अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए इस्तग़फ़ार करते हुए दुआ मांगी। इंशाअल्लाह यही सिलसिला 3 रोज तक चलेगा। तमाम करनूल के मुसलमानों की जानिब से और तमाम उम्मत मुस्लिमा की जानिब से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बारान रहमत। आंध्र प्रदेश केशव रेड्डी स्कूल के तलबा के वालिदैन ने आज जिला कलेक्ट्रेट करनूल के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजियों ने केशव रेड्डी स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो स्कूल में दाखिले के दौरान फी तालिब इल्म 1 लाख रुपए हासिल कर रहे हैं और तालीम मुकम्मल करने के बाद इस रकम को लौटाने का वादा किया गया, लेकिन स्कूल इंतजामिया अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने की अपील की है। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी सुरेश रेड्डी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की सताइश की है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की के लिए, बिलखुसूस पसमानदा तबकों की तरक्की के लिए बीजेपी हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने वाईएसआर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तेलुगुदेशम हुकूमत के नक्श कदम पर न चलने का भी मशवरा दिया। विजयवाड़ा से खबर है, जहां आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। 3 घंटों तक हुई तेज बारिश के सबब सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर रही। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को काफ़ी मुश्किलें पेश आईं। कृष्णा जिले में भी तेज़ बारिश हुई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना रहा। मकामी आवाम का कहना है कि मौसम बरसात की आमद के बाद पहली बार इस तरह की बारिश हुई है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।